تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا کہ اسلام کے 4 فرائض کون کون سے ہیں، تو اس پر ضرور عمل کریں اور پورا بیان ضرور سنیں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سنا چمن رہ جائے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دنیا میں کسی کو نہیں رہنا، ہمیشہ کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ بادشاہ دنیا میں آئے اور آج ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ بڑے بڑے محدثین دنیا میں آئے، وہ نیک بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، متقی بھی تھے، اہل علم بھی تھے، مگر آج وہ محدثین بھی بظاہر زمین کی پشت پر نہ رہے، زمین کی پیٹھ پر نہ رہے، حتیٰ کہ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی مخلوق میں اللہ کی سب سے محبوب ترین ہستیاں، جن سے اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت نے وہ جماعت انبیاء کی بنائی ہے۔ وہ انبیاء کرام بھی اللہ ان کی طرح کوئی نیک نہیں، ان کی طرح کوئی متقی نہیں، ان کی طرح کوئی پرہیزگار نہیں، ان کی طرح کوئی اللہ والا نہیں، جنہوں نے پتھر کھا کر اللہ کی طرف بلایا، جنہوں نے گالیاں سن کر اللہ کی طرف بلایا، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا کے اللہ کی طرف بلایا۔ کسی نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، کسی نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کو طوفان میں غرق ہوتا ہوا دیکھ لیا، کسی نے اللہ کی محبت میں بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا، کسی نے اللہ کی محبت میں اللہ اکبر اپنا وطن چھوڑ کر کے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو برسوں تک اللہ سنبھالتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی زمین کی پشت پر وہ بظاہر ہمیشہ نہ رہے، انہیں بھی موت کی لذت کو چکھنا ہوا، انہوں نے بھی موت کی لذت کو چکھا، جیسا کہ ان کا مقام تھا، جیسا کہ ان کا مرتبہ تھا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کیا پتا چلا فرعون بھی ہمیشہ نہ رہا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی زمین کی پشت سے تشریف لے گئے، اللہ اکبر، نمرود ہمیشہ نہ رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بظاہر زمین کی پشت سے تشریف لے گئے۔ کیا پتا چلا ایک دن سب کو جانا ہے، جب محبوب دنیا سے چلے گئے، محبوب لوگ بظاہر دنیا سے چلے گئے تو پھر کون کیا رہ سکتا ہے؟ تو یاد رکھنا، یہ دنیا سے سب کو کوچ کرنا ہے، یہ دنیا سے سب کو رخصت ہونا ہے، یہ دنیا سے سب کو روانہ ہونا ہے، اور اللہ پھر منزل نہیں ہے دنیا انسان کی، مگر اس کے بعد پھر قبر میں جانا ہے، قبر بھی منزل نہیں ہے انسان کی، اسی طرح میدان محشر میں جانا ہے، محشر بھی منزل نہیں ہے انسان کی، انسان کی منزل تو 2 میں سے کوئی ایک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے 2 منزلیں بنائی ہے، اخیر میں انسان یا تو جنت میں جائے گا، خوش نصیب ہے وہ انسان جو جنت میں جائے، یا پھر اللہ اکبر کم نصیب انسان یا بد نصیب انسان اللہ اکبر وہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ یہی ٹھکانہ ہے، کیا برا ٹھکانہ ہے، جو تنگ ہے، جو تاریک ہے، جس میں اللہ کا عذاب ہے، جس میں سانپ ہے، بچھو ہے، جس میں اللہ اکبر بہرے اور اندھے فرشتے ہیں جو انسان پر مسلط کیے جائیں گے عذاب دینے کے لیے، اور جنت کی نعمتیں کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ آپ آئیے، اللہ اکبر، جنت کس کا ٹھکانہ ہے اور جہنم کس کا ٹھکانہ ہے، اب آپ کے اوپر ہے، آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں اپنے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے نہ آپ کو مجبور محض بنایا ہے، اور نہ اللہ رب العزت نے کسی کو مکمل طور پر جو ہے مختار یعنی اختیار دیا ہے، کہ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال اور افعال خود تخلیق کرتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، اور انسان مجبور محض بھی پتھر کی طرح نہیں ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے اتنا اختیار تو دیا ہے کہ انسان سعی کرے، انسان کوشش کرے، انسان کاوش کرے۔ کیا کوشش کرے انسان؟ اگر تم نیک عمل کرو گے ایمان لانے کے بعد، اگر تم نیک عمل کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر تم نے پاپ کیا، تم نے جرائم کیا،
किए, तुमने गुनाह किए तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। अगर गुनाह करते करते ईमान पर मरे तो भी जहन्नम के अंदर कुछ वक्त तक रहना पड़ेगा। और अल्लाह ना करे गुनाह अगर तुम्हें कुफ्र तक लेकर के चले गए और गुनाहों ने तुम्हें काफिर और मुशरिक बना दिया तो फिर हमेशा हमेशा का ठिकाना जहन्नम होगा। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आइए अमल क्या चीज है। अल्लाह अकबर, अमल बड़ी अजीम चीज है, इसलिए कि आमाल इंसान को अल्लाह के करीब करते हैं। क्या आपको नहीं पता बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस मुबारक में आया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को आमाल में सबसे अजीम तरीन आमाल अगर कोई पसंद है तो वो फराइज है। यानी अल्लाह को फर्ज से बड़ा कोई अमल पसंद नहीं है। सबसे ज्यादा अमल अगर अल्लाह को कोई पसंद है तो वो फराइज है। यानी अल्लाह ने जो तुम पे फर्ज कर दिया है, जब तुम वो अदा करते हो तो अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे ज्यादा किसी बात पे खुश होता है तो वो फराइज की अदायगी पर खुश होता है। आइए अब हम पर क्या क्या फर्ज है। मिसाल के तौर पर ईमान के बाद हम पर जो चीज फर्ज की गई है वो नमाज है। नमाज हम पर 5 वक्त की फर्ज है। अल्लाह अकबर। और याद रखना, अल्लाह अल्लाह, इंसान जब फर्ज अमाल को अदा करता है तो फर्ज की अदायगी पर जो उसको सवाब मिलता है उसका कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फज्र की 2 सुन्नतें, फज्र की 2 सुन्नतें एक पल्ले में रखी जाएं और दुनिया की सारी नेमतें एक पल्ले में रखी जाए तो फज्र की 2 सुन्नतों के बराबर दुनिया की सारी नेमत नहीं हो सकती। अब आप मुझे बताएं, जब 2 सुन्नत का ये मकाम है कि पूरी दुनिया की दौलत, पूरी दुनिया की इज्जत, पूरी दुनिया की शोहरत, पूरी दुनिया की नेमत एक पल्ले में हो और फज्र की 2 रकत एक पल्ले में हो सुन्नत, तो उसका मर्तबा भारी है। तो जब सुन्नत का ये मकाम है तो फर्ज का क्या मकाम होगा, फर्ज का मर्तबा क्या होगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान के बाद हम पर जो फर्ज किया वो नमाज है। अल्लाह अल्लाह। अब आइए मैं कुछ फराइज आपके सामने जिक्र करूंगा, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है सबसे पहले नमाज। और नमाज का जिक्र इसलिए है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने भी जो बुनियादी 5 चीजों का जिक्र फरमाया उसमें आमाल के एतबार से पहले नमाज का जिक्र फरमाया। और यह भी फरमाया गया क़यामत के दिन सबसे पहले इंसान से जो पूछा जाएगा उसके नामे आमाल के हवाले से तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। हुजूर गरीब नवाज फरमाते हैं कि नमाज के बारे में तुमसे सबसे पहले सवाल किया जाएगा। जो नमाज का हिसाब देगा उसके सारे मामलात दुरुस्त होंगे और जो नमाज का हिसाब न दे सकेगा उसकी आखिरत तबाह हो जाएगी, उसकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, अल्लाह अकबर, आज पूरी दुनिया का जायजा लिया जाए तो तकरीबन 95% लोग जो हैं वो नमाज अदा नहीं करते, नमाजों से कोसों दूर हैं। अल्लाह अकबर। और एक बात याद रखना, दुनिया के अंदर जो गुनाह है सिर्फ इसलिए है ज्यादातर कि लोग नमाज नहीं पढ़ते। दुनिया में जो जराइम है इसलिए कि लोग नमाज नहीं पढ़ते। खुदा की इज्जत की कसम, अगर मुसलमान नमाज पढ़ने लगे तो दुनिया से सारे जराइम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। जब नमाज पढ़ोगे हर गुनाह से खुद ब खुद रुकोगे, जब नमाज पढ़ोगे हर जुर्म से खुद ब खुद रुकोगे। एक नौजवान की शिकायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नौजवान गुनाह बहुत करता है, जराइम बहुत करता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने शान मासूमियत से पूछा क्या वो नमाज भी पढ़ता है? तो सहाबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह वो नमाज भी पढ़ता है। तो मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया इंशाअल्लाह उसकी नमाज एक दिन उसको बुराई से रोक लेगी। और चंद दिन के बाद शिकायत करने वाले खुदा के कहते हैं या रसूल अल्लाह अब वो गुनाह नहीं करता। तो मेरे आका ने फरमाया हमने तो कहा था कि उसकी नमाज उसको गुनाह से रोक लेगी, क्योंकि कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बुराई और बेहयाई से रोक लेती है, इसमें कोई शक नहीं। बगैर शक के फरमाया, यूं तो कुरान की हर बात ऐसी है कि उसमें शक की गुंजाइश नहीं है, उसके बावजूद भी कुरान कहता है बेशक नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है।
اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آج ہر ماں باپ چاہتے ہیں میرے بچے نیک ہو جائیں، میرے بچے پرہیزگار ہو جائیں، میرے بچے متقی ہو جائیں۔ ماں چاہتی ہے میرا بیٹا شراب نہ پیے، میرا بیٹا جوئے کی طرف نہ جائے، میرا بیٹا جرائم کی طرف نہ جائے، میری بیٹی گناہوں کی طرف نہ جائے، میری بیٹی نافرمانیوں کی طرف نہ جائے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، اپنے بچوں کو نمازی بنا دو، بچپن ہی سے انہیں نماز کا پابند بنا دو۔ اگر آپ انہیں نماز کا پابند بنا دو گی، آپ کو بھی برکتیں ملے گی، آپ کے بچوں کو بھی برکتیں ملے گی۔ نماز کی پہلی برکت یہ ہے۔ تو عرض میری یہ تھی کہ اگر ہم بچوں کو نمازی بنا دیں، پہلا فائدہ یہ کہ انشاءاللہ وہ گناہوں سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، تو اللہ کا فرمان حق ہے، یقینی ہے، جب کوئی نماز کے قریب ہو جاتا ہے وہ خود بخود گناہ سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، نماز کی برکت سے روزی بھی ملنا ہے، اس لیے کہ نماز کی برکت سے عزت بھی ملنا ہے، نماز کی برکت سے وقار بھی ملنا ہے، نماز کی برکت سے سکون بھی ملنا ہے، نماز کی برکت سے دنیا کے اندر نام بھی ملنا ہے، نماز کی برکت سے جو ہے وہ قبر میں سکون بھی ملنا ہے، نماز کی برکت سے جنت بھی ملنا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ، جس نماز سے اللہ مل جاتا ہے اس نماز سے کیا نہیں مل سکتا؟ رشتوں کی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا رشتے نہیں آتے، میں نے کہا نماز پڑھو، کیونکہ جب نماز سے اللہ ملتا ہے تو نماز سے اچھا شوہر کیوں نہیں مل سکتا؟ نماز سے جب اللہ مل سکتا ہے تو اچھی بیوی کیوں نہیں مل سکتی؟ نماز سے جب حوران جنت مل سکتی ہے تو اللہ اکبر، آخر انسان کو بیوی اور شوہر کیوں نہیں مل سکتے؟ ہر نعمت نماز کی برکت سے مل سکتی ہے۔ لوگوں نے نماز کی اہمیت نہیں جانی، لوگوں نے نماز کی اہمیت نہیں سمجھی۔ ذرا سجدے کی اہمیت سمجھو، نماز کی اہمیت سمجھو۔ اللہ اکبر، جو نماز پڑھے رزق میں برکت ہو۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک مرتبہ رابعہ بصری حج سے واپس آ رہی تھی، واپس آتے آتے ان کی سواری مر گئی، یعنی ان کی اونٹنی مر گئی یا ان کا گھوڑا مر گیا، اور جب مر گیا تو رابعہ نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا کہ حج کو بلایا جاتا ہے اور سواری کو مار دیا جاتا ہے، کیا کوئی اپنے مزدور کمزور مزدور کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتا ہے؟ اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتی ہے اور دعا کرتی ہے، اللہ نماز کی برکت سے اس گھوڑے کے اندر، اس سواری کے اندر نئی جان پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، ایک بار نماز سے رشتے کو جوڑ کر کے دیکھو، یہ جتنے اپنے مسائل ہیں، میاں بیوی میں آپس میں نہیں بن پا رہی ہے، اللہ اکبر، میاں بیوی کا رشتہ مستحکم نہیں ہے، گھر گھر جنگ کے اندر تبدیل ہو چکا ہے، جنگ کھانے میں تبدیل ہو چکا ہے، گھروں کے اندر تباہی ہے، گھروں کے اندر بربادی ہے، گھروں کے اندر بے برکتی ہے، بیٹا باپ کی نہیں سنتا، ماں کی بیٹیاں نہیں سنتی، یعنی گھر جہنم کدے جو بنے ہوئے ہیں۔ آپ صرف نماز کو اختیار کر کے دیکھیے، آپ مجھے بتائیں، نماز کی برکت سے پورا ماحول بدلے گا، نماز کی برکت سے پورے ماحول میں تبدیلی آئے گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو جب کوئی کہہ دیتا ہے کہ آپ یہ وظیفہ کر لیں آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ یہ کام کر لیں آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ وہ کام کر لیں آپ کے گھر میں برکت ہوگی، اے خاتون جنت کی کنیزوں، کسی کی بھی بات اتنی یقینی نہیں ہے جتنی بات میرے اللہ کی یقینی ہے، اللہ کے رسول کی یقینی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے نماز کیا چیز ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جو وہ اپنے علاقے کے اندر اپنے کچھ احباب کے ساتھ، کچھ ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ نے کیا دیکھا کہ بہت خوبصورت ایک کنیز ہے، ایک لڑکی ہے، ایک کنیز ہے، بہت خوبصورت ہے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کئی کنیزیں اس کے ارد گرد جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار نے اس لڑکی کے قریب جا کر کے فرمایا، کیا تجھے تیرا مالک بیچے گا؟ اس لیے کہ پہلے کنیزیں خریدی بھی جاتی تھی اور بیچی بھی جاتی تھی۔ جب اس لڑکی سے کہا، خوبصورت کنیز سے کہا، تو اس نے گردن کو جھرجھری دی، اور جھرجھری دینے کے بعد کہا، میرے مالک کے پاس چلیے اور آپ خود ہی بات کر لیجئے کہ وہ مجھے بیچے گا کہ نہیں بیچے گا، اس لیے کہ وہ اتنی خوبصورت تھی، اتنی حسین و جمیل تھی کہ اس کا مالک اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، اور اس کی بڑی عزت تھی، کنیز ہونے کے بعد بھی ملکاؤں کی طرح اس کی عزت تھی، رانیوں کی طرح اس کی عزت تھی، بادشاہ زادیوں کی طرح اس کی عزت تھی، اس کے حسن اور جمال نے لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کر رکھی تھی۔ حضرت مالک الدینار کو اس نے کہا، چلیں چل کے میرے مالک سے بات تو کریں۔ حضرت مالک الدینار گئے، وہ بہت بڑے مالدار اور بہت بڑے سردار کی کنیز تھی، اس کے پاس جا کر کے مالک الدینار نے کہا، کیا اس کنیز کو تم بیچو گے؟ حضرت مالک بن دینار کو وہ جانتا تھا، پہچانتا تھا کہ یہ صوفی انسان ہے، اللہ کے ولی ہیں، یہ لوگ بہت زیادہ مال و دولت نہیں رکھتے، تو اس نے ہنس کر کے کہا، بابا کیا اس کنیز کو آپ خرید سکتے ہو؟ بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو حضرت مالک الدینار نے فرمایا، 2 سڑی ہوئی کھجوریں
दो सड़ी हुई, अंदाज देखे खरीदने का, फरमाया 2 सड़ी हुई खजूरें अगर ये ले लें तो भी ये कनीज को मैं खरीद सकता हूं। उसने हंस के कहा खजूर वो भी 2 और सड़ी हुई, आखिर क्या बात है? तो हजरत मालिकुद दीनार ने फरमाया ये तो मैं कीमत लगा रहा हूं, हालांकि इसमें भी ये बड़ी महंगी है, क्योंकि 2 सड़ी हुई खजूरों के बराबर भी इसकी कीमत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऐब ही ऐब है, इसके अंदर ऐब ही ऐब है। ए खातून जन्नत की कनीजों, अंदाजा करो, जब हजरत मालिकुद दीनार ने कहा इसमें ऐब ही ऐब है, तो बात वो सरदार ने, मालदार ने पूछा ए हजरत मालिकुद दीनार इसमें क्या ऐब है? तो उस वक्त तो आपने फरमाया देखो, पहली बात तो ये है कि इसका जो जिस्म है, अगर ये गुस्ल न करे तो इसके जिस्म से बदबू आएगी, अगर ये मिसवाक न करे, मुंह साफ न करे तो इसके मुंह से बदबू आएगी। उसके बाद इसका हाल ये है कि अल्लाह अकबर, एक दिन ये मर जाएगी, एक दिन इसको मौत आएगी, और जब मौत आएगी तो ये तुझे गमगीन करके जाएगी, यानी ये तुझे सदमा दे करके जाएगी। अल्लाह अकबर। और फिर कहा अगर इसको मौत नहीं आती है, तेरी मौत आने तो इसकी मौत आने से पहले अगर तुझे मौत आ गई तो अल्लाह अकबर ये तेरे साथ बगावत करेगी, और ये तेरे साथ जो बगावत करेगी आज तेरे साथ है, कल किसी और के साथ होगी, आज तुझे प्यार दे रही है, कल किसी और को प्यार देगी, आज तेरे साथ वफा कर रही है, कल किसी और के साथ वफा करेगी। इस तरीके से आपने फरमाया कि इसके बड़े ऐब ही ऐब है। अल्लाह अकबर। जब ये बूढ़ी हो जाए तो इसके बदन में झुर्रियां पड़ जाएगी, जब ये बूढ़ी हो जाए तो इसका हुस्न बाकी नहीं रहेगा, इसकी खूबसूरती बाकी नहीं रहेगी, ये हाल इसका होगा। अल्लाह अकबर। ये सुनने के बाद उस सरदार ने कहा, उस मालिक ने कहा कि ऐ मालिकुद दीनार, क्या कोई ऐसी भी कनीज है जिसके अंदर ये ऐब ना हो? कोई ऐसी भी कनीज है जो मरेगी नहीं, जो बूढ़ी नहीं होगी, जिसके अंदर ये सारे ऐब नहीं है, मुंह से बदबू नहीं आएगी, अगर वो ना नहाए तो उसके जिस्म से बदबू नहीं आएगी? हजरत मालिकुद दीनार ने फरमाया हाँ, मेरे पास कनीज ऐसी है कि जो वो जाफरान की बनी हुई है, उसकी परवरिश याकूत और जमरुद के माहौल में हुई है, और जिसका हाल ये है कि अल्लाह अकबर वो काफूर की बनी है, वो अंबर की बनी है, और उसका हाल ये है कि उसके अंदर नूरानियत है, वो मरेगी नहीं, और वो जिसको मिलेगी वो भी नहीं मरेगा। अल्लाह अकबर। तो उसने पूछा वो कौन सी कनीज है? तो फरमाया कि उसको हूर कहते हैं, और वो जन्नत की हूर है। तो पूछा कि उसकी कीमत क्या है? अब जरा तवज्जो फरमाए, असल जो उन्वान की तरफ आपको लाना था वो ये है कि उस शख्स ने पूछा बाबा उसकी कीमत क्या है? तो मालिकुद दीनार फरमाते हैं इतनी सस्ती है वो कि जब बस्ती के सारे लोग सो जाएं और सबको नींद आ जाए और सब लोग अपने अपने बिस्तरों पर महवे इस्तिराहत हो जाएं, तो उस वक्त तो अच्छी तरह कोई वुजू कर ले, और वुजू करके 2 रकत नफल नमाज पढ़ ले, तो बस ये 2 रकत नफल नमाज उसका महर है, उसकी कीमत है कि ये 2 रकत नफल पर अल्लाह वो जन्नत की हूर उसको हमेशा हमेशा के लिए अता फरमाता है। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, आप अंदाजा करें कि जब 2 रकत नफल पर जन्नत की हूर मिल जाती है, सिर्फ 2 रकत नफल पर, अब अंदाजा करें हूर जहां की होगी तो ठिकाना भी वहीं का होगा। इसका मतलब यह है कि जब नफल नमाज की ये शान है तो सुन्नत मौक़िदा की क्या शान होगी, और जब सुन्नत ताकीदी की ये शान है तो फिर फराइज की क्या शान होगी। लेकिन हमने नमाज को तर्क किया। मर्द फिर भी 5% नमाज पढ़ते हैं, मगर औरतों में नमाज की बड़ी कमी है, औरतें नमाज से कोसों दूर हैं। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, याद रखना नमाज पढ़ने से अल्लाह भी मिलता है, नमाज पढ़ने से जन्नत भी मिलती है, लेकिन अगर कोई नमाज न पढ़े तो तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि अल्लाह अकबर, जितना दर्दनाक अजाब जहन्नम के अंदर बेनमाजी को दिया जाएगा उतना दर्दनाक अजाब किसी को नहीं दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपना ख्वाब बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि मुझे 2 लोग उठा करके लेकर के पहाड़ की तरफ जाते हैं, और फिर वो पूरे ख्वाब का एक हिस्सा ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने देखा कि कोई जमीन पे लेटा हुआ है और उसके सर पर एक फरिश्ता बड़ा सा पत्थर चट्टान मार रहा है,
और जब उसके सर पे वो पत्थर मारा जाता है तो उसका सर ऐसे पिस जाता है जैसे चने पर अगर हथौड़ा मारा जाए तो चना किस तरीके से पिसेगा, इसी तरीके से इंसान का सर पिस रहा है और सर रेजा रेजा हो रहा है और वो चट्टान लुढ़क करके फिर कहीं और जाती है और जब वो चट्टान को उठाने के लिए वो बंदा जाता है तो वो सर पहले की तरह फिर दुरुस्त हो जाता है, फिर वो चट्टान ला करके मारता है, बड़ा सा पत्थर ला करके मारता है, फिर सर पिस जाता है, फिर पत्थर लुढ़क कर जाता है। जब वो पत्थर को उठाकर लाता है तो उठाकर लाने से जितनी देर लगती है उतनी देर में सर फिर दुरुस्त हो जाता है। मैंने पूछा जी ये कौन लोग हैं, तो कहा गया ये वो लोग हैं जो नमाज में सुस्ती किया करते थे, जो नमाज में सुस्ती करते थे, यानी नमाज को वक्त पर नहीं पढ़ते थे। मेरी बहनों बताओ, अगर सर से लोहा टकरा जाए या सर दीवार से टकरा जाए तो हमारे सर की कैफियत क्या होती है? थोड़ा अपने आप पर रहम करो, ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अपने हाल पे रहम करो। हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते, हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं रखते। अल्लाह की बंदियों जरा सोचो तो सही, जब नमाज न पढ़ने की वजह से, सजदा न करने की वजह से, अल्लाह की बारगाह में सर न झुकाने की वजह से, जब इसी सर पर पत्थर पड़ेंगे और सर कुचला जाएगा पत्थरों से, तो कौन बचाने के लिए आएगा? मेरी बहनों किसी को खबर ही नहीं होगी। इस मक्कार बेकार फरेबी दुनिया का हाल ये है, अगर मुसीबत में कोई गिरफ्तार हो जाए और खबर होती है तो भी इंसान कहता है मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, मालूम पड़ता तो हम आ जाते। आप बताएं, जब लोगों को खबर होती है तो लोग मदद नहीं करते, जहन्नम में तो किसी को खबर भी नहीं होगी। मेरे इमाम कहते हैं उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं, जहां गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर न हो। वो मकाम है जब बेटे पे गुजरेगी तो बाप को खबर भी नहीं होगी, और जब किसी को खबर ही नहीं होगी तो कोई मददगार कैसे होगा? अगर खबरदार कोई होगा और मददगार भी कोई होगा तो वो एक जात है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, मगर वो रसूल भी इरशाद फरमाते हैं कि जो नमाज को छोड़ देता है क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। मेरी बहनों, आप खाने पकाने के लिए किचन रूम में घंटों गुजारती हो, अपनी सहेलियों के साथ बैठकर घंटों गपशप करती हो, सीरियल भी देखती हो, फिल्में भी देखती हो, उसके लिए वक्त निकाल लेती हो। मगर मेरी बहनों, आज इस सुन्नी इज्तिमा में हमारी गुजारिश ये है, आपको अल्लाह का वास्ता है, आप नमाजी बन जाइए। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। मेरी बहन, नमाज की तरफ आइए। मेरी बहनों, दीनदार बनना है तो दीनदार बनने का सबसे पहला जीना नमाज है। अगर तुम नमाज पढ़ोगी तो धीरे धीरे खुद ही अल्लाह के करीब हो जाओगी, दीन के करीब हो जाओगी। और मेरी बहनों, नमाज अगर नहीं पढ़ोगी तो आपने अजाब की एक शक्ल सुनी है। उसके बाद में आपको बताऊं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, मरते वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है तो बेनमाजी को तकलीफ होती है। बल्कि एक शक्ल बताई गई कि बेनमाजी को मरते वक्त अल्लाह इतना प्यासा कर देता है, इतना प्यासा कर देता है कि अल्लाह अकबर, कि अगर उसके हलक के अंदर 7 समुंदरों का पानी भी निचोड़ दिया जाए तो भी कोई उसकी प्यास को नहीं बुझा सकता। मेरी बहनों, बताओ 10 मिनट किसको कहते हैं? अगर इंसान मुंह में पान रखे तो पान भी इंसान 10 मिनट में नहीं चबाता, पान खाने में भी 10 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता है, खाना खाने में भी 10 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता है। अपने आप पर रहम करो, अपने हाल पे रहम करो। अगर अल्लाह के अजाब से अपने आप को बचाकर जन्नत की राह का मुसाफिर बनाना है तो आज ये अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगी। मेरी बहनों, याद रखो। और आइए, अल्लामा उस्मान इब्ने हसन ने एक रिवायत नकल की है, अब उसको जरा धड़कते हुए दिल से सुन ले। बेनमाजी का अंजाम
क्या है, फिर हम दूसरे फराइज की तरफ चलेंगे ताकि आपको उसकी भी अहमियत पता चले। अल्लाह अकबर, दौरे रिसालत है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का ज़ाहिरी दौर है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सहाबा झुरमुट किए बैठे हुए हैं। इतने में एक जवान रोते हुए आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, हुजूर किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते थे, किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते थे। मेरे आका की आदत थी, जिसको भी रोते हुए देखा आका बेचैन हो जाते, सरकार बेकरार हो जाते। उस जवान को रोते हुए देखा तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, ए जवान क्यों रो रहे हो, रोने की वजह क्या है? वो जवान अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। या रसूल अल्लाह, आज मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है, मेरा बाबा मर गया है आका, मगर हम देहाती लोग हैं, हम देहात में रहते हैं और हमारे यहाँ मेरे बाप को ना कोई गुस्ल देने वाला मिल रहा है, ना कोई कफन पहनाने वाला मिल रहा है, ना कोई नमाजे जनाजा पढ़ने वाला मिल रहा है। इतना सुनना था, आका को उस पर रहम आ गया और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने पूरी महफिल पे नजर डाली। तो महफिल पे नजर डालने के बाद मेरे आका ने सिद्दीक अकबर और फारूक आजम से फरमाया, तुम दोनों उठो, जाओ और उस देहात में पहुंचो और पहुंच करके उसके बाप को गुस्ल दो, उसको कफन अपने हाथ से पहनाओ और उसकी नमाजे जनाजा पढ़ो। देखो ये सहाबा के सरदार है, शेखैन करीमैन सिद्दीक अकबर और फारूक आजम, अभी वली नहीं, वलियों से बड़ा मकाम, वलियों से बड़ा मर्तबा, गौस कुतुब और अब्दाल कलंदर से बड़ा मर्तबा इन लोगों का है। आका ने उनको फरमाया, वो दोनों चले। जैसे ही देहात में पहुंचे, पहुंचने के बाद उसके बाप की मैयत पर चादर पड़ी हुई थी। दोनों ने गुस्ल देने के लिए जैसे ही चादर हटाया तो दोनों की चीख निकल गई, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। क्यों? इसलिए कि जैसे ही चादर हटाया तो क्या देखा, जिस्म तो पूरा इंसानों की तरह था मगर मुंह काले सुअर की तरह हो गया था, मुंह काले खिंजीर की तरह हो गया था। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई किस्सा नहीं है, ये अल्लामा उस्मान इब्ने हसन जैसा मुहद्दिस अपनी किताब में लिख रहा है। अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर ने देखा कि मुंह सुअर की तरह हो गया, वो भी काले सुअर की तरह, काले खिंजीर की तरह हो गया। दोनों रो पड़े। अल्लाह 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 से माफियत का सवाल करते हैं। चूंकि वो रसूलुल्लाह का जाहिरी दौर था तो अल्लाह ने ये निशानी दिखा दी। अब तो ये निशानी दिख भी नहीं सकती क्योंकि अब जो कुछ होता है वो कब्र के अंदर होता है। हम अल्लाह से आफियत का सवाल करते हैं, हम अल्लाह से आफियत का सवाल करते हैं। अल्लाह अकबर, एक कासिद भेजा गया, या रसूल अल्लाह इसका मुंह तो काले सुअर की तरह हो गया, इसको कैसे गुस्ल दे, इसकी नमाज जनाजा कैसे पढ़े, इसको कफन कैसे पहनाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो अल्लाह के रसूल खुद तशरीफ लाए और आने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने देखा कि चेहरा उसका सुअर की तरह था, काले खिंजीर की तरह था। आका भी रो पड़े, हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका ने हाथ उठाए और दुआ की, अल्लाह इसका चेहरा दुरुस्त कर दे मौला। अल्लाह ने उसका चेहरा दुरुस्त कर दिया। जल्दी से सहाबा ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया और उसकी नमाज जनाजा पढ़ी गई। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद किसी ने चुपके से कहा, पहले तो मुंह इसका सुअर का हो गया था, हुजूर की दुआ से अच्छा हुआ, अब नमाज जनाजा के बाद चेक तो कर लो, देख तो लो कि मुंह कैसा है। जब नमाज जनाजा के बाद चेहरा देखा गया तो कफन के अंदर फिर से चेहरा काले सुअर की तरह था, काले खिंजीर की तरह था। वापस से चेहरा बदल गया। हुजूर अलैहिस्सलाम भी रो पड़े, सारे सहाबा रो पड़े। मेरी बहनों सोचो तो सही, अल्लाह ना करे जनाजे में किसी का मुंह काले सुअर की तरह होना तो दूर की बात है, अगर जनाजे में किसी का मुंह सिर्फ काला हो जाए तो उस वक्त तो लोगों के दरमियान कितनी रुसवाई होगी, कितनी जिल्लत होगी। अल्लाह अकबर। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।